مختلف شعبوں میں 59,815 ٹیسٹ سیمپل لیے گئے اور سیمپل ٹیسٹ میں 95 پازیٹیو آئے جبکہ 54,747 نیگیٹو آئے۔ پازیٹیو کیسز کی شرح 1.6% رہی۔ مختلف مارکیٹس کے 34,289 سیمپلز لیے گئے، 82 پازیٹیو باقی نیگیٹو نکلے۔ اس پر مزید ڈیٹیلز لیں گے اپنے نمائندے محسن الوی سے۔ جی محسن، بتائے گا اس بارے میں۔ جی بالکل، حکومت پنجاب کی رپورٹ کے مطابق مختلف مارکیٹوں کے 34,299 سیمپل لیے گئے، جن میں سے 22 مثبت آئے ہیں جبکہ باقی منفی آئے ہیں۔ کیسز کی شرح جو ہے 0.54% رہی۔ شاپنگ مال سے 4,810 سیمپل لیے گئے، 8 مثبت آئے، شرح 0.17% ریکارڈ کی گئی۔ سیاحتی مقامات سے 5,353 ٹیسٹ لیے گئے، کوئی ٹیسٹ جو ہے مثبت نہیں آیا۔ مختلف ہوٹل سے 2,255 سیمپل لیے گئے، جن میں سے 1 پازیٹیو نکلا اور 2,033 نیگیٹو رہے۔ جبکہ ریسٹورینٹ سے 2,018 سیمپل لیے گئے، جن میں سے کوئی مثبت نہیں نکلا۔ جن میں سے کوئی بھی مثبت نہیں نکلا۔ شکریہ آپ کا محسن۔ سندھ پولیس میں کورونا کے 18 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ کورونا کی شکار پولیس افسران اور جوانوں کی تعداد 3,315 ہو گئی ہے۔ کورونا وائرس سے سندھ پولیس کے اب تک 18 افسر اور جوان شہید ہو چکے ہیں۔ ترجمان سندھ پولیس کے مطابق نئے کیسز گزشتہ روز میں سامنے آئے۔ زیر علاج افسران اور جوانوں کی تعداد 298 ہے۔ 2,999 افسران اور جوان صحت یاب ہو کر گھر جا چکے ہیں۔ کورونا سے متاثرہ اہلکاروں کا مکمل طور پر خیال رکھا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں روزانہ کی بنیاد پر اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کا ماں اور بچہ صحت پروگرام میں میڈ وائفری ملازمین کے اعزاز میں مبینہ طور پر گھپلے کا معاملہ ہے۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ کیئر نے سی ای او ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ننکانہ صاحب ڈاکٹر شکیل احمد کی انکوائری شروع کر دی ہے۔ مراسلے کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر نصرت ریاض ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز گجرانوالہ کو انکوائری آفیسر مقرر کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر نصرت ریاض ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز گجرانوالہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی گجرانوالہ کا دورہ کریں گے اور ڈاکٹر شکیل احمد کے دور میں ہونے والی مالی اور انتظامی کرپشن کی انکوائری کی جائے گی۔ سرائی تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کو بنے 4 سال ہو گئے مگر ہاسپٹل میں ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف اور ادویات کی کمی پوری نہ ہو سکی۔ ہاسپٹل میں عملے کی کمی کے باعث مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تفصیلات لیں گے سید امجد شاہ سے۔ جی بالکل، تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کو بنے 4 سال کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن یہاں جو بنیادی سہولیات ہیں ان کی کمی ہے۔ لاکھوں روپے کی مشینری تو یہاں پر موجود ہے لیکن یہاں پر ریڈیالوجسٹ نہ ہونے کی وجہ سے عوام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت اسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر ظفر بیدی موجود ہے، آئیے مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی بتائیے گا۔ جی ہمارے پاس کچھ کنسلٹنٹس اس وقت کم ہیں، واقعی ریڈیالوجسٹ نہیں ہے، اس کے لیے ہم نے انفارمیشن اپنے ڈپارٹمنٹ کو دی ہوئی ہے۔ جو ہی وہاں پہ اپوائنٹمنٹس ہوں گی ہم امید کرتے ہیں کہ جلدی ریڈیالوجسٹ کی اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی تو انشاءاللہ یہ کمی بھی پوری ہو جائے گی۔ باقی ڈاکٹرز ہمارے پاس اس وقت سرجیکل اسپیشلسٹ، گائناکالوجسٹ، پیڈیاٹریشین وہ سارے موجود ہیں اور وہ بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں اور ہماری او پی ڈی ان کی وجہ سے ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہے۔ ضرورت اس عمر کی ہے کہ 4 سال اگر اس اسپتال کو بنے ہو چکے ہیں تو یہاں پر تمام ڈاکٹرز کے ساتھ ساتھ ادویات اور پیرامیڈک سٹاف کی کمی کو پورا کیا جائے تاکہ تحصیل سرائی عالمگیر کے عوام یہاں پر بآسانی اپنا علاج معالجہ کروا سکے۔ جی ملکہ کوہسار مری میں بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ ساون کی رمجھم نے مری کے موسم کو ٹھنڈا اور خوشگوار بنا دیا۔ خوبصورت موسم کو انجوائے کرنے کے لیے سیاحوں کی بڑی تعداد نے مری کا رخ کر لیا ہے۔ کیا صورتحال ہے، تاج بخاری سے ہم جانیں گے۔ اس وقت میں موجود ہوں ملکہ کوثر مری مال روڈ کے اوپر، جہاں پہ اگر موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت بھی بادل جو ہیں وہ آسمان سے زمین کی طرف آ رہے ہیں اور زمین کو چھو کے پھر آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی ایک فیملی یہاں پہ موجود ہے، ان سے پوچھتے ہیں۔ ہم ملتان سے آئے ہوئے ہیں تو وہاں پہ تو صاف ظاہر ہے وہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو اس لیے ہم مری کی طرف آئے ہیں اور یہاں پہ واقعی ہم انجوائے کر رہے ہیں اور یہاں پہ موسم بہت زیادہ اچھا ہے۔ یہاں پہ موسم بہت اچھا ہے، ملتان میں تو بہت گرمی ہے، بہت زیادہ، تو بہت تنگ ہو کے یہاں پہ آئے ہیں۔ سیدھا سے موسم ہے، یہاں پہ سیلفیاں بنائی جا رہی ہیں اور تصاویر جو ہے وہ بنائی جا رہی ہیں اس خوبصورت موسم کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ بھی مری تشریف لائیں اور اس خوبصورت موسم کو انجوائے کریں۔ جی اور اب بات کریں گے اسکردو کی۔ سرسبز میدانوں پر پھیلا ہوا عالمی شہرت یافتہ سیاحتی مقام دیوسائی مختلف اقسام کی پھولوں، جھیل، ندی نالوں کا مسکن کہلاتا ہے۔ دل فریب نظارے دیکھتے ہیں اقبال علی اقبال کی رپورٹ میں۔
सतह समुद्र से 13,700 फीट की बुलंदी पर वाक़ नेशनल पार्क देवसाई, जहां पर झील, नदी नालों से बहता ठंडा पानी और सरसब्ज मैदान सियाहों को अपनी तरफ खींच लेता है। देवसाई पर मौजूद शिवसर झील समेत मुतअद्दिद झीलों का नीला पानी किसे अच्छा नहीं लगता। कुदरती दिल फरेब नज़ारे देखने हर साल हजारों की तादाद में सियाह यहाँ का रुख करते हैं। फैसिलिटीज़ की जो है वो बहुत ज़्यादा कमी है। यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ देनी चाहिए उनको वो नहीं है। एक तो सबसे बेसिक फैसिलिटी नेटवर्क नहीं है यहाँ पर। आप यहाँ पर आने के बाद आप कट ऑफ हो गए बाकी दुनिया। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर स्पेशली जो है नेटवर्क के ऊपर प्रोवाइड करे, और जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जैसे कि लाइट यहाँ पर नहीं है तो लाइट का निज़ाम हो, प्रॉपर रेस्ट रूम हो, ताकि लोग जो है वो फैसिलिटीज़ को देखते हुए यहाँ पर है। स्कर्दू के नेशनल पार्क में मौजूद जंगली हयात, मुख्तलिफ इकसाम के फूल हुकूमती अदम तवज्जुही का शिकार हैं। नेशनल पार्क के सियाहती मकाम पर सफाई सुथराई का कोई इंतजाम नहीं, ना ही कहीं महकमा सियाहत का अमला दिखाई देता है और ना ही महकमा वाइल्ड लाइफ के एहलकार। सवात के सियाहती मकामात पर सयाह हसीन वादियों से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। सुहाना मौसम ने भी सयाहों की तफरीह को दुबाला कर दिया है। बड़ी तादाद में सयाहों की आमद से सवात के मुख्तलिफ शाहराहों पर रश बरकरार है। मज़ीद जानेंगे सवात से बहार अली से। जी बिल्कुल, सवात खैबर पख्तूनख्वा के ऐलान के बाद जो ही सयाहती मकामात खुले हैं तो बड़ी तादाद में सयाहों ने सयाहती मकामात की तरफ रुख कर लिया है और यहाँ पर सयाहों की आमद भी जारी है। हमारे साथ यहाँ पर कराची से आए हुए एक सयाह मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि सवात के हवाले से वो क्या कहते हैं और कितनी एंजॉय की है सवात को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। स्वाद में बहुत इंजॉय भी किया है और लॉकडाउन के बाद बहुत असर पड़ा है यहाँ पे। सियाह भी बहुत लोग आ रहे हैं यहाँ पे और अच्छा हो गया, बेहतर हो गया और लोगों के लिए भी। आगे ग्लेशियर भी बहुत अच्छा है और पॉइंट बहुत अच्छे हैं, देखने वाले हैं यहाँ पे, तो सब लोग आए और इन्जॉय करें। जी जी बिल्कुल, आपने यहाँ के जो कराची से आए हुए सयाह हैं उनके बातें आपने सुनी। उनका कहना था कि यहाँ का मौसम भी काफ़ी सुहाना है, अच्छा है। यहाँ के जो मुकामी ग्लेशियर है, जो आबशारें हैं, जो शोर मचाती हुई नदियाँ हैं और दरियाई सवात है, वो किनारे बैठकर खूब लुत्फ़अंदोज़ भी हो रही है, मज़े भी ले रहे हैं। और यहाँ के जो पुरसुकून माहौल है, पुरसुकून पुरशोर माहौल है, उनसे खूब लुत्फ़अंदोज़ भी हो रही है। जी, गिलगित बल्तिस्तान में सियाहत का शोबा खोलने के बाद कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सरकारी और गैर सरकारी सतह पर कोशिशें जारी हैं। पाक चीन सरहद खुंजराब टॉप पर निजी फलाही तंजीम में सयाहों में मास्क तकसीम किए और कोरोना से मुतालिक आगाही दी। रिपोर्ट करेंगे आबिद हुसैन। सियाहत पर पाबंदी खुलते ही सियाहों की बड़ी तादाद ने पाक चीन बॉर्डर खुंजराब का रुख कर लिया। कोरोना SOPs को यकीनी बनाने के लिए निजी NGO के ज़ेरे एहतमाम मास्क तकसीम किए गए। मुशीर सियाहत गिलगित बल्तिस्तान समीना बेग ने सियाहों को SOPs का खास ख्याल रखने की हिदायत की। जो पेंडेमिक है इसके जो असरात है ये बहुत ज़्यादा है और इसके जो SOPs हमने बनाए थे गिलगित बाल्टिस्तान की जो गवर्नमेंट ने उस पे भी बहुत ज़रूरी है कि उन पे अमल किया जाए। सैर के लिए आने वालों ने भी इंतजामिया के इस इकदाम को सराहा। टूरिस्ट को ये कन्वे करना, उनको ये मास्क की अहमियत का बताना और उनको ये मास्क प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी था। आई रियली अप्रिशिएट। फलाही तंजीम की तरफ से खुंजराब टॉप पर आगाही वाक का भी एहतमाम किया गया। आबिद हुसैन, नियो न्यूज़, खुंजराब, गिलगित बल्तिस्तान। ठट्ठा की किंजर झील में कश्ती हादसे के बावजूद कराची से हजारों शहरी पिकनिक मनाने पहुंच गए। मर्द, खवातीन और बच्चे बड़ी तादाद में झील में नहाते और मौज मस्ती में मगन हैं। झील के किनारे किसी ने गर्मा गर्म खाना बनाया तो कोई सुहाने मौसम से लुत्फ अंदोज होता हुआ दिखाई दिया। मज़ीद जान लेते हैं ताज़ा गुल की रिपोर्ट में। कैंजर झील में कश्ती हादसे के बावजूद मौज मस्ती का सिलसिला जारी है। यहाँ मर्दों खवातीन की ठंडे पानी से अटकेलियाँ अरूज पर हैं। जब बड़े मौज मस्ती में मगन हों तो बच्चे किसी से पीछे क्यों रहें। सुहाने मौसम से हर कोई शादा है। झील किनारे किसी ने रक्स किया तो कोई गर्मा गर्म खाना तैयार करता नजर आया। झील में हिफाजती इंतजामात के पेश नजर कश्ती सवारी और ट्यूब पर मुकम्मल पाबंदी है। कैमरामैन सजाद खान के साथ ताज़ा गुल, नियो न्यूज़, ठट्ठा। हैदराबाद और इसके गिरदोनवाह में मौसम खुशगवार हो गया तो शहरियों ने तफरीह के लिए दरियाए सिंधुल मंजर का रुख किया। हैदराबाद के ब्यूरो चीफ नासिर शेख हमें मजीद बताएंगे।
छुट्टी का दिन हो तो शहरियों की अवलीन ख्वाहिश होती है कि वो तफरीही मुकामात पर जाएं। चूँकि काफ़ी अरसे से लॉकडाउन था, इस वजह से जो है वो तफरीही मराकज़ भी बंद थे, जिसके सबब शहरी जो है वो घरों के अंदर मैसूर होकर रह गए थे। अब उनकी ख्वाहिश है कि वो मुख्तलिफ मुकामात पर तफरी करें। यहाँ सबसे खूबसूरत मुकाम जामशोर अल मंजर का है, दरिया सिंध के किनारे पर। यहाँ पर तफरी के लिए लोग आए हुए हैं। हम लोग लाड़काना से आए, हमें यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। हमने बोट पे भी सवारी की, यहाँ पे बहुत पानी है और बहुत मज़ा है ना कि यहाँ पे जो है वो बहुत इंजॉय किया है, चूँकि यहाँ पे बोट है और ये जो है वो दूर तक जो है दरिया के अंदर घूमने जाते हैं, दरिया के किनारों पे इंजॉय करते हैं, नहाते हैं, यहाँ पर खाने खाते हैं। तो ये तफरी का एक मुकाम है। चूँकि हैदराबाद में और जामशोरों में कोई और तफरी नहीं, इसलिए ज़्यादातर शहरियों की ख्वाहिश है कि इन इलाकों में आकर जो है तफरी करें और गर्मी का मज़ा भी दोबारा करें और इंजॉय करें। जी। खैबर पख्तूनख्वा के जिला चारसद्दा के चौंसा आम के खूब चर्चे हैं। चौंसा खाने शहरी दूर दराज से आबाजाई के बागात का रुख करते हैं। दरियाई सवात के संगम पर वाक़े बागात के आम साइज और जायके में दूसरे आमों से मुनफरिद हैं। चारसद्दा से हमें रिपोर्ट करेंगे नसरुल्लाह खटक। आम का जिक्र हो तो सिंध और पंजाब को याद किया जाता है, लेकिन इन दिनों खैबर पख्तूनख्वा के जिला चारसद्दा के चौंसा आम के खूब चर्चे हैं। ये साइज और जायके में दूसरे आमों से काफी मुख्तलिफ हैं। दूर दराज से लोग चौंसा खाने आबाजाई के बागात का रुख करते हैं। यहाँ के आम जायकादार होने की एक वजह बागात का दरिया स्वात के संगम में वाक़े होना है। यहाँ के आम बहुत ज्यादा लजीज और बहुत मजेदार आम है। मैं दावे से कहता हूँ कि पंजाब और सिंध के आमों से बिल्कुल ये मुनफरिद आम है और इसका जायका उनसे बहुत ज्यादा अच्छा है। ये हम जो है ना यूएई में सप्लाई कर देते हैं, और सऊदीया में सप्लाई करते हैं और यूरोप ममालिक में सप्लाई करते हैं और दीगर ममालिक तक सप्लाई करते हैं। आबाजाई का अनवर राठौर भी बहुत मशहूर है। दुबई, सऊदी अरब और दीगर ममालिक को एक्सपोर्ट भी किया जाता है। सियालकोट शहर जहां कई हवालों से अपनी अलग पहचान रखता है, वहीं इस शहर के हुनरमंदों की बदौलत क्रिकेट बैट की तैयारी भी एक बड़ा कारनामा है। क्रिकेट बैट पर मज़ीद जानेंगे उस्मान इकबाल की रिपोर्ट में। खेलों के सामान के लिए दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान सियालकोट। क्रिकेट की दुनिया के नामवर खिलाड़ी मुल्की हों या गैर मुल्की, सियालकोट में तैयार किए गए बैट इस्तेमाल करते हैं। सियालकोट के हुनरमंद कारीगर मखसूस लकड़ी को एक बल्ले की शक्ल में तराशते हैं, फिर मशीनों की मदद से बैनुल अक़वामी मयार का बैट तैयार होता है। पाकिस्तान में एक बल्ले की कीमत 10,000 से 75,000 रुपए तक है, जिसे क्रिकेट शायकीन खुश दिली से खरीदते हैं। बैरून मुल्क और दीगर शहरों में मुकीम शायकीन क्रिकेट सियालकोट से अक्सर स्पोर्ट्स का सामान मंगवाते हैं। दुनिया के दीगर ममालिक में खेलों के सामान की बरामदात से खतीर ज़र मुबादला हासिल किया जाता है। कैमरामैन खालिद फरीदी के साथ उस्मान इकबाल, न्यू न्यूज़, सियालकोट। इंतजामिया की नाअहली 8 साला नन्ही ईमान फातिमा की जान ले डूबी। लाश घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। अपनी मदद आपके तहत देहातियों ने लाश को रूही से निकाला। कोट राधा किशन के नवाही गांव रूसा भेल में नन्ही ईमान फातिमा पुल दूर होने के बाइस रूही नाले पर फिक्स बिजली वाले पुल को क्रॉस करते हुए पांव फिसलने से रूही नाले में डूबकर जान बहक हो गई, जिससे मकामी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत निकाला। जनाजे में इंतजामिया और अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद, और ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। मुजफ्फरगढ़ में घरेलू खर्चे के तनाज़े पर शौहर ने कुल्हाड़ी की वार करके बीवी की टांग काट दी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में जफर हुसैन का अपनी बीवी से घरेलू खर्चे के मामले पर झगड़ा हुआ। पुलिस के मुताबिक झगड़े के दौरान तैश में आकर जफर हुसैन ने कुल्हाड़ी की वार करके बीवी की टांग काट दी। खातून को जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, जबकि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गुजरांवाला के इलाके कोटली रुस्तम में घरेलू झगड़े पर बड़े भाई ने कुल्हाड़ी की वार से छोटे भाई को कातिल कर दिया। मुलजिम ने मां बाप और भाभी को भी जख्मी कर दिया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। कातिल का वाकया कोटली रुस्तम के इलाके में पेश आया। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं।
फैसलाबाद में चोरी और डकैती का सिलसिला ना रुक सका। समंदरी के इलाके में डकैती मुजाहमत पर 2 मोटरसाइकिल सवारों पर सवार 4 डाकुओं ने शहरी से बैग छीन लिया। मुजाहमत पर नजीर नामी शहरी को फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया गया। फैसलाबाद की नुमाइंदे साजिद खान से हम तफसीलात लेंगे। साजिद बताएगा जख्मी शहरी की हालत कैसी है और पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ कोई कार्रवाई की क्या? जी बिल्कुल, फैसलाबाद के अंदर अगर देखा जाए तो रोजाना की बुनियाद पे 50 के से जायद जो वारदातों की कॉल 15 पे मसूल होती है। पुलिस की जानिब से दावे तो किए जाते हैं कि चोरी डकैती की वारदातों को रोका जाएगा, लेकिन फैसलाबाद के अंदर अगर देखा जाए तो चोरी और डकैती की वारदातें मेन रोड पे, मेन कॉलोनियों के अंदर घरों में डकैती हो रही है, मेन शहरों पर डकैती हो रही है, लेकिन पुलिस बुरी तरह नाकाम है। आज भी जो है अफसोसनाक वाकया जो समुद्री के इलाके में पेश आया, जहाँ पे मोटरसाइकिल सवार 4 डाकू जो एक शहरी से बैग छीन के फरार हो रहे थे। मुजाहमत पर डाकुओं की जानिब से फायरिंग की, जिससे नजीर नामी शख्स शदीद जख्मी हो गया। शदीद जख्मी हो गया था। शुक्रिया आपका साजिद। जिला कोहिस्तान के मकाम जैद खार नाले के करीब गाड़ी दासू से बशाम जाते हुए दरिया में जा गिरी। हादसे में ड्राइवर समेत 3 अफराद डूबकर जाँ बहक हो गए, जबकि लाशों की तलाश जारी है। शम्सुर रहमान से हम तफसीलात जानेंगे इस हादसे से मुतालिक। शम्सुर रहमान बताएगा। जी बिल्कुल, यहाँ जिला कोहिस्तान के मुकाम पे एक वीवो गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है, जिसमें सवार ड्राइवर समेत 3 अफराद जो हैं वो दरिया में डूब गए हैं। अभी तक लाशों की तलाश जारी है और अभी तक कोई भी शख्स रेस्क्यू टीमों को नहीं मिला है। और ये गाड़ी दासू से बिशाम की तरफ जा रही थी। खाड़ नाला यहाँ एक मुकाम है, उसके करीब मोड़ काटते हुए सीधा दरिया में जा। शम्सुर रहमान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पेशावर में मुहर्रम उल हराम के पेश नजर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। मुहर्रम के जुलूसों के लिए शहर में 5000 पुलिस एहलकार तैनात किए गए। दूसरी जानिब पुलिस ने गुवाहाटी में सुप्रीम कमांड पोस्ट कायम कर दी, जहां सीसीटीवी कैमरों के जरिए शहर भर में जुलूसों और इमाम बारगाहों की निगरानी की जा रही है। जमील खान से हम इस वक्त डिटेल्स ले लेते हैं, जो कि सुप्रीम कमांड पोस्ट पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, मुहर्रम उल हराम के दौरान पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। पेशावर में गुवाहाटी का जो इलाका है तो वहाँ पे सुप्रीम कमांड पोस्ट फ़ाल कर दिया गया है, जिसमें CCTV कैमरे भी नस्ब कर दिए हैं, जिसके ज़रिए मुख्तलिफ जो रास्ते हैं छोटे बड़े तो उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। WCSP, ज़िला इंतज़ामिया और दीगर महकमों के एहलकार जो है यहाँ पे अलर्ट कर दिए गए, जबकि साथ साथ पेशावर में पुलिस हुक्काम के मुताबिक तकरीबन 5000 तक पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। ताहम 90 और 10वें मुहर्रम उल हराम पे जो है पुलिस के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस, स्पेशल ब्रांच और दीगर फोर्सेस के जवान जो है यहाँ पे तैनात होंगे। यहाँ पे जो है सुप्रीम कमांड पोस्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर फंक्शनल कर दिया गया है। कैमरों के ज़रिए जो है पूरे शहर की मॉनिटरिंग की जाएगी, जबकि सिक्योरिटी एहलकार जो है अलर्ट कर दिए गए हैं। जी फैसलाबाद में पुलिस और इंतजामिया की जानिब से मुहर्रम उल हराम के जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम किए गए हैं। मजालिस और जुलूसों के लिए सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया है। शौकत वट्टू से हम तफसीलात ले लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल, मुहर्रम उल हराम के दौरान जो है वो फैसलाबाद में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम किए गए हैं। ज़िला इंतजामिया और पुलिस की जानब से यह मजालस और जुलूसों की जगह पर जो है वो सिक्योरिटी जो है इंतहाई सख्त कर दी गई है, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके। आज जो है फैसलाबाद में 183 मजालस, 4 जुलूस होंगे, जिनकी सिक्योरिटी के लिए जो 1800 से ज़ायद जो पुलिस एहलकार और अफसरान हैं वो ड्यूटी पर मामूर किए गए हैं। जुलूस और जो मजालस हैं उनकी जो जगह होती है वहाँ पर आने जाने वाले तमाम रास्तों को खारदार तारों से सील कर दिया जाता है। इसके साथ साथ जो ज़िला इंतजामिया और पुलिस के आला अफसरान होते हैं वो जुलूस और मजालस की जगह पर सबसे पहले मुआयना करते हैं, और उसके साथ साथ जो है वो वहाँ पर वॉक थ्रू गेट और जो है वो खारदार तारें जो है वो लगाई जाती हैं, ताकि जो है वो सिक्योरिटी को इंतहाई सख्त किया जा सके। जबकि जो आने जाने वाले जो रास्ते होते हैं वहाँ पर जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो हर फर्द की जो है वो 3 महलों में चेकिंग करते हैं, और उसके बाद जो है वो आज़ादारों को अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है। जी खैरपुर टामेवाली में मुहर्रम उल हराम के लिए पुलिस ने भी सिक्योरिटी की फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं। शाहिद अब्बास से हम मजीद तफसीलात लेंगे, जो कि DSP सैयद एजाज हुसैन के ऑफिस में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खैरपुर टामेवाली DSP ऑफिस में। मेरे साथ सैयद एजाज हुसैन साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कि मुहर्रम उल हराम के हवाले से सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं। जी सर बताइएगा। जी बिल्कुल, यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक सर्कल खैरपुर के थाना खैरपुर और अनैती में कुल 14 जुलूस निकलते हैं। मजालिस प्रोग्राम तो रोज़ाना अपने टाइम के मुताबिक होते हैं, और जो जुलूस हैं वो 14 हैं, जिनकी सिक्योरिटी के लिए इंशाअल्लाह बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं।
250 मुलाजमान पुलिस ड्यूटी करेंगे। जी, जैसा कि मोहम्मद इजाज साहब की बात सुनी आप उनका ये कहना है कि हम तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर दिए गए हैं। मुहर्रमुल हराम शुरू होते ही मुल्क भर से ज़ायरीन दरबार हज़रत शाह शम्स तबरेज़ पर हाज़िरी के लिए आते हैं। ये इलाका तबरक़ात की खरीदारी का बड़ा मरकज़ भी है। मुल्तान से इमरान अरशद। उम्मीदों के दीप जलाए जाते हैं, रूहानी फैज पाए जाते हैं। मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होते ही बरे सगीर पाको हिंद के रूहानी पेशवा शाह शम्स तबरेज के मिज़ार पर खुसूसी दुआओं का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। इस्लाम की खातिर हिजरत करके आए और इस्लाम की तबलीग के लिए यहाँ पर आए और करिश्मात अपने दिखाए। गुजरावाला से आया हूँ, शाह शम्स तबरेज दरबार बहुत अच्छे है। मुहर्रमुल हराम के दिनों में शाह शम्स तबरेज सब्जवारी पर ज़ायरीन का रश इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये तबरक़ात की खरीदारी का सबसे बड़ा मरकज है। ये जो पकौड़े बने हुए जनाब एलियस करके ज्यादातर लोग जो हैं वो अलम पाक वगैरह खरीदने के लिए यहाँ आते हैं। दरबार हजरत शाह शम्स तबरेज के मिज़ार पर आने वाले ज़ायरीन शदीद गर्मी की परवाह भी नहीं करते। मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होते ही पाकिस्तान भर से ज़ायरीन दरबार हजरत शाह शम्स तबरेज पर जौक तर जौक आते हैं। कैमरामैन काशिफ नवाज के साथ इमरान अरशद, नियो न्यूज़, मुल्तान। कोयटा में आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद तंदूर मालिकान ने रोटी के वजन में कमी कर दी। पहले 20 रुपए की रोटी के वजन को 280 ग्राम किया जाता था, लेकिन हुकूमत की जानिब से ओपन मार्केट में सस्ते आटे की फराहमी में नाकामी के बाद आटे की कीमतों में इजाफे के बाइस रोटी के वजन को 260 ग्राम कर दिया गया है। हुकूमत कोयटा में रवा साल के दौरान आटे की कीमतों में इजाफे का सिलसिला बरकरार। ओपन मार्केट में हुकूमत के सस्ते आटे की फरामी में नाकामी के बाद रवा साल आटे के 50 किलो के तेली की कीमत में 1000 रुपए का इजाफा हुआ। आटे की कीमतों में इजाफे की वजह से नान भाइयों ने रोटी की कीमत में इजाफा तो नहीं किया, ताहम 20 रुपए की रोटी की वजन में कमी कर दी। पहले 20 रुपए की रोटी का वजन 280 ग्राम था, लेकिन अब इसके वजन को 260 ग्राम कर दिया गया। शहरियों का कहना है कि अब ये रोटी नहीं बल्कि पापड़ बन गया है। हाथ से बिल्कुल कम कर दिया है, पापड़ की तरह। वैसे 5 रोटी में गुजारा होता था, अभी 10 से लेना पड़ता है हम लोगों को। अभी ये बोलते हैं उधर महंगाई हो गया आटे का, हम लोग मजबूर हैं, हम क्या करें बोलते हैं। रोटी वही 20 रुपए की दे रहे हैं, वजन इसमें कमा पेशी कर दिया है। हुकूमत ने हमें क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया। हम तो इसके ऊपर कोई इत्तेफाक भी नहीं करते। दूसरी जानिब तंदूर मालिकान का कहना है कि रोटी के वजन में कमी आटे की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से किया गया है, क्योंकि पहले वजन के मुताबिक रोटी फरोख्त करने से इनको नुकसान हो रहा था। कैमरामैन अहमद नईम के साथ असमत अमान सुमालानी, नियो, कोयटा। शाहकोट में मुसलसल होने वाली बारिशों की वजह से खेतों को पहुंचने वाले नुकसानात और सब्जियों की सप्लाई में तातुल आने से सब्जियों की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। मौजूदा सूरत हाल में किसानों और सब्जी मंडी के व्यापारियों को परेशानी का भी सामना है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे शाहकोट से कामरान अली से। जी बिल्कुल, हालिया बारिशों की वजह से सब्जियों की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। सब्जियों की जो तरसील है उसमें कमी वाक़या हो गई है, जिसका जो फ़ायदा है वो सब्जी फरोशों ने उठाना शुरू कर दिया है। मेरे साथ इस वक्त एक सब्जी फरोश है, इससे बात करते हैं और जानते हैं कि इसके इस हवाले से क्या कहना है। फसलों में पानी खड़ा होने की वजह से सब्जी की पैदावार जो सी वो रुक गई है। अब मंडियों में रसाई जो सी है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल तक पहुंच गई है, जिसकी वजह से हमें उस सब्जी मंडियों से सब्जी जो सी महंगे दामों खरीदना पड़ रही है और आवाम को भी महंगे दामों देना पड़ रही है। अब सब्जी की पैदावार जो सी है वो नॉर्मल हालात में आएगी तो हम आवाम को रिलीफ दे सकेंगे। बारिशों की वजह से खेतों में भी काफ़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से जो सब्जियों की तलब है वो बढ़ गई है और इनको कीमतें ज़्यादा करना पड़ी हैं। और अगर यही तरसील जो है वो मुतासर होती रही तो सब्जियों की कीमतों में मज़ीद इजाफा होने का खदशा है। जी, और अब आपको बताएं कि जनूबी पंजाब में महकमा फूड अथॉरिटी की मिलावट माफिया और जालसाजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मिलावट शुदा दूध बरदार गाड़ी भी पकड़ ली गई। 400 लीटर दूध मौके पर तल्फ कर दिया गया। अदनान याकूब से हम मज़ीद जानेंगे इस बारे में। अदनान बताएगा इन कार्रवाइयों के बारे में। जी बिल्कुल, पंजाब फूड अथॉरिटी ने जनूबी पंजाब भर में मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां की हैं। उसमें
दूध बरदार गाड़ियां भी पकड़ी और इसके साथ ही स्वीट यूनिट्स, मुख्तलिफ सोडा वाटर यूनिट्स और फूड पॉइंट की चेकिंग में 11 फूड पॉइंट को सील भी किया है। और जो गाड़ियां पकड़ी उसमें 2000 लीटर मिलावटी दूध मौका पर उन्होंने पकड़ के तलब कर दिया। इसके साथ 190 लीटर सोडा वाटर, 120 लीटर ड्रिंक्स और इसके अलावा मुख्तलिफ मसाला जात जो हैं वो जो मिलावट ज़्यादा थे और जो अनहेल्दी थे लोगों की सेहत के लिए। ठीक है, सामान को कब्जे में ले लिया गया है। शुक्रिया आपका दिना। बीआरटी इंतजामिया ने हयाताबाद में फीडर रूट्स पर भी बसेस चलाना शुरू कर दी हैं। पीर के रोज से हयाताबाद में 3 फीडर रूट्स पर सर्विस शुरू की जाएगी। बीआरटी के मेन कॉरिडोर के बाद रूट्स पर भी बस सर्विस का आगाज हो चुका है। हयाताबाद में 3 फीडर रूट्स पर पीर के रोज से बसेस चलेंगी। बीआरटी इंतजामिया के मुताबिक कारखानों मार्केट से फेज 7 बरास्ता इंडस्ट्रियल स्टेट फीडर रूट्स को खोला जा रहा है। इसके अलावा मॉल ऑफ हयाताबाद से फेज 6 टर्मिनल बरास्ता बशारत मार्केट बस चलेगी। एबटाबाद की शाहराह रेशम टूट फूट का शिकार हो गई। घंटों ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। 2 माह पहले मानसहरा रोड का इफ्तिताह किया गया लेकिन मुरम्मती काम ताहाल शुरू नहीं हुआ। हारून तनोली की रिपोर्ट। एबटाबाद की शाहराह रेशम टूट फूट का शिकार। 2 माह पहले मानसहरा रोड का इफ्तिताह किया गया। तख्तियां तो लग गईं लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं किया गया। सड़क की तामीर तात्तुल का शिकार होने से 10 मिनट का सफर 2 घंटे में तय होता है। शहरी और ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं इनकी लाखों रुपए मालियत की गाड़ियां तबाह हो रही हैं। तो काफी टाइम से इसकी सही मुरम्मत नहीं की जा रही, इसको सिर्फ टाँकियाँ वगैरह लगाई जा रही हैं और इसमें ऐसा कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की जा रही। मैंने हमारे अली खान जुलूम साहब उन्होंने ये 40 करोड़ के फंड से इसका इफ्तिताह किया था। उन्होंने कहा कि ये सलाट से लेके पब्लिक स्कूल तक इसको जो बनाया जाएगा। जगह जगह रोड जो है हमारा खंडर बन चुका है लेकिन 2 महीने हो चुके हैं, अभी तक हमने कोई मशीनरी नहीं देखी। इस हवाले से काम आगे वो नहीं देख रही। मानसहरा रोड को अच्छी तक पुख्ता ना करने से घंटों ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। और अब बात करते हैं नवाब शाह की। 120 साल आलमदीन और बुजुर्ग मुफ्ती जलालुद्दीन जमाली बगैर चश्मे के लिखते, पढ़ते और दर्स व तदरीस में मसरूफ रहते हैं। रिपोर्ट करेंगे इमरान काशिफ। इल्म अदब के शदाई, इस्लाम के सच्चे सिपाही मुफ्ती जलालुद्दीन जमाली दिलों को मोह लेने वाली शख्सियत के मालिक हैं और दरसो तदरीस करते 70 साल बीत गए। उम्र भर खुद भी दीन पढ़ा और सीखा, जबकि सैकड़ों तलबा को हफ्फाज, आलम और मुफ्ती बनाया। उन्होंने 33 हज और 45 उम्रे अदा किए। कभी हज़रत साहब ने झूठ नहीं बोला, कभी गुस्सा नहीं किया। जब भी तालिब इल्म से फारग होकर यहाँ पे जो मदरसा चलाया तो गांव में कितने ही आसपास में जो लोग हैं वो हज़रत साहब के शागिर्द हैं। 120 साल की उम्र में भी बगैर चश्मे के लिखते और पढ़ते हैं। पंजाब हुकूमत का शेरगढ़ के नौजवानों के लिए एहसन इक़दाम। कब्जा माफिया से वागुजार कराई गई जमीन पर जिम्नाजियम की तामीर का ऐलान कर दिया गया है। मुआवनी ख़ुसूसी वज़ीर आला ने कहा है कि सेहतमंद मुआशरे की तश्कील के लिए खेलों का इनकाद इंतहाई अहम है। जिम्नाजियम 1 साल में मुकम्मल होगा। इसी पर रिपोर्ट करेंगे रियासत अली। शेरगढ़ के नवाही इलाका राजोवाल में वागजार कराई गई सरकारी अराजी पर जिम्नेजियम की तमीर का ऐलान वज़ीर आला पंजाब के मामले ख़ुसूसी मलक उमर फारूक ने किया। मलक उमर फारूक ने तकरीब से खिताब में कहा, खेलों का फरोग भी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। हर शहर में ग्राउंड आबाद किए जाएंगे। ये विजन है पीटीए हुकूमत का कि स्पोर्ट्स को हम लोग फरोग देंगे। तो इंशाल्लाह हम इसी जगह पे मैंने इनको कहा है कि आप सब मिलके एक उस पे रिक्वेस्ट दे दें। डीएस को मैं अभी कह देता हूँ, डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर अभी साथ आए हैं, वो इसकी एक फिजिबिलिटी बना लेते हैं इंशाल्लाह। मामले ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब मलक उमर फारूक ने कहा, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, हुकूमत नौजवानों को आगे लेकर जाना चाहती है। बहुत जल्द जिम्नेजियम की तमीर का काम शुरू हो जाएगा, जिससे खेलों को फरोग मिलेगा। कैमरामैन शहरियार के साथ रियासत अली चौधरी, न्यूज़ शेरगढ़। कोरोना वबा में कमी के बाद खेलों के मैदान भी आबाद होना शुरू हो गए हैं। सादिकाबाद में खैरपुर और सादिकाबाद की टीम्स के दरमियान दिलचस्प हॉकी मैच खेला गया। सादिकाबाद से मोहम्मद शाबान की रिपोर्ट। वीरान मैदान आबाद होने लगे। सादिकाबाद में खैरपुर और सादिकाबाद की टीमों के मबैन मैच खेला गया। तवील लॉकडाउन से परेशान खिलाड़ी भी मैच के इनकाद में खुश दिखाई दिए।
स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ जो है वो बहाल हो गई हैं, जिससे तकरीबन हर खिलाड़ी को खुशी महसूस हुई है, क्योंकि हर कोई घर में तंग बैठा हुआ था। आज हम मैच देखने आए, बहुत मजा आ रहा है हमारे ग्राउंड में। आज इतने दिनों बाद लोगों को देख के दिल खुश हो गया है। मैच के आगाज से ही सादकाबाद की टीम खैरपुर की टीम पर हावी रही। पै दर पै हमलों से सादकाबाद टीम के खिलाड़ियों ने मुखालिफ टीम पर अपनी दाग बिठा दी। सादकाबाद ने मैच 0 के मुकाबले में 3 गोल से जीत लिया। मैच के मुंतजमीन ने SOPs को फॉलो करते हुए कम तादाद में तमाशाइयों को आने की इजाजत दी। मोहम्मद शबान, न्यू न्यूज़, सादकाबाद। सोशल मीडिया और इंटरनेट के दौर में भी किताब से इश्क रखने वाले अफराद कम नहीं हुए। मुताला के शौकीन अफराद चाय की चुस्कियों के साथ इल्म का खजाना समेटने के लिए फैसलाबाद की तारीखी अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी का रुख करते हैं। 4 गुंबदों और 12 सतूनों की ये खूबसूरत इमारत अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी की है, जो 1 सदी से ज़ायद की मुसाफत तय कर चुकी। इस इमारत में कदीम दौर से जदीद दौर तक की तकरीबन 3 लाख किताबें मौजूद हैं, जो किताबों से इश्क रखने वाले अफराद की तस्कीन का जरिया बनी हुई हैं। किताबों से शगफ बड़ा पुराना है, तो उसकी तस्कीन के लिए हम यहाँ लाइब्रेरी में आते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत पुरानी और नायाब कुतुब पड़ी हुई हैं। लाइब्रेरी की शेल्फ हो या फिर अलमारियाँ अफसानवी कुतब, उर्दू अदब, लिटरेचर, फारसी समेत तारीखी एतबार से अहमियत की हामिल किताबों से लदी हुई हैं। मगर किताबों के शौकीन अफराद लाइब्रेरियन न होने से नायाब कुतब के खजाने को होने वाले नुकसान के खदशा से भी नाला दिखाई देते हैं। हम लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं अपना टाइम निकाल के, उसमें हमें ये इशू आता है कि यहाँ पे लाइब्रेरियन मौजूद नहीं है। अगर हमें कोई चीज़, कोई बुक ढूंढनी हो तो हम अपनी जो है वो मदद से ढूंढते हैं। 1912 में ब्रिटिश दौरे हुकूमत में तामीर की गई इस लाइब्रेरी का चप्पा चप्पा जहां अंग्रेज दौर की याद को ताज़ा करता है, वहीं ये इमारत शहर की खूबसूरती को भी 4 चांद लगाए हुए है। लाइब्रेरी की तारीखी इमारत में अदब, उर्दू, लिटरेचर और शायरी समेत मुख्तलिफ नायाब कुतब का बड़ा जखीरा मौजूद है, जो कुतब बीनों के लिए किसी अनमोल खजाने से कम नहीं। कैमरामैन मोहम्मद इब्रार के साथ ज्वेरिया नजीर, नियो, फैसलाबाद। शहर शहर गांव गांव का अहवाल आपने जाना। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नियो।